से निर्वासित किए गए भारतीय प्रवासियों को लेकर राज्यसभा में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि यह सभी देशों का दायित्व है कि यदि उनके नागरिक विदेश में अवैध रूप से रह रहे पाए जाते हैं तो उन्हें वापस ले लिया जाए। अमेरिका से निर्वासित भारतीय नागरिकों के बारे में राज्यसभा में बोलते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यह भी कहा कि हम अमेरिकी सरकार के साथ बातचीत कर रहे हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वापस लौटने वाले निर्वासितों के साथ किसी भी तरह का दुर्व्यवहार न हो। अमेरिका से निर्वासित भारतीय नागरिकों पर राज्यसभा में बोलते हुए विदेश मंत्री ने कहा कि कानूनी गतिशीलता को प्रोत्साहित करना और अवैध आवागमन को हतोत्साहित करना हमारे सामूहिक हित में है। यदि कोई नागरिक अवैध रूप से विदेश में रह रहा पाया जाता है तो उसे वापस बुलाना सभी देशों का दायित्व है। निर्वासन की प्रक्रिया कोई नई नहीं है। Asked me where did we have consular access to these 104 or others who are in detention. In many cases, sir, consular access, embassy would like to have consular access to any Indian national, but that national has to request consular access. In many cases, they have not requested, so we were not aware. But in every case, we have obtained passport details, we have checked the verification, we have ensured that they are Indians, and we have had contacts to ensure that that is the case. Then, sir, there is the next issue. After their return, are we making an effort, which Honorable Member Tirchi Siva asked, are we making an effort? Yes. In fact, that is why the authorities have been given instructions, and I would urge Honorable Member Sanjay Singh not to misrepresent that instruction. They have been given instruction to sit with every one of the returnees, find out how did they go to America, who was the agent, how did this illegal industry happen, how can we take precautions so that this does not continue. We have been very, I would say, such sympathetic and solicitous to the predicament of people going. So I do not want the House or the public to have a wrong understanding of how they were received. They have come through a very difficult experience. They were misled by agents. I will come to the action issue after this, sir. Then the question, sir, I think one member raised saying, the numbers went up after 2016. Sir, I was very bureaucratically correct. I took a single source. Sir, what is meant by bureaucratically correct? Sir, which means I followed a bureaucratic database to ensure that I gave before the House a very similar comparable number from the same database. So, sir, as a healthy practice, let everyone follow the bureaucratic practice. Yes, sir. Go ahead. Now, sir, what I do want to say, actually, if one looks at the Homeland Security data, sir, the Homeland Security, the American Homeland Security Department has a report about aliens removed by criminal status and country of nationality. For India, actually that number is 860. I am shocked. I allowed indulgence. No, what is this? You are not listening to the Honorable Minister. No, I am so sorry. Please. Honorable Minister. Yes, sir. I'll be careful next time. Sir, I'll be careful next time. Take your seat. Sir, Honorable Minister. Homeland Security Department data actually shows prior to 2014, their numbers, American numbers were actually close to 1,000. The numbers I have given, sir, as can be seen in the statement, are from the Bureau of Immigration. In many cases, possibly because if they were not issued emergency certificates, they may have been treated differently. Maybe they went to some other country. So I would say we should look at this in a overall manner, rather than try to make clever points about which year was a little higher than which year. Then, sir, the issue came about military aircraft being sent. Now, some other members also raised, have military aircraft been sent before.
The procedure, sir, is we have looked at deportations for the last 15 years. It is up to the authority of the Immigration Authority to charter an aircraft. It could be a military aircraft, but whichever aircraft comes in, it is under the authority of the ICE. The procedure, whether it was a military aircraft, whether it was a chartered aircraft, was exactly the same. Then the issue came up, sir. Was there advance notice given? Sir, the Only what the minister says goes on record. Please go ahead. advance notice. चलिए आगे बढ़ेंगे। सांसद रवि किशन ने एग्जिट पोल, दिल्ली के एग्जिट पोल को लेकर कहा है कि दिल्ली में हमारी सरकार बन रही है, बीजेपी की सरकार बन रही है। एग्जिट पोल पर उन्होंने कहा कि दिल्ली की जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी पर भरोसा करके अपना भविष्य तय कर लिया है। दिल्ली जाग चुकी है कि और 8 तारीख को एग्जिट पोल से भी बेहतर नतीजे आएंगे। इनको आप पार्टी पर को आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि आपको लगता था कि वे अजय हैं, इसलिए इन्हें दर्द हो रहा है, इनका घमंड टूट चुका है। मिल्कीपुर उपचुनाव पर उन्होंने कहा हमारी ऐतिहासिक जीत होगी। दिल्ली वालों ने यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी की गारंटी पर विश्वास करके अपने आने वाले बच्चों के भविष्य को, अपने भविष्य का निर्णय लिया है और ये उसी का परिणाम कल आप एग्जिट पोल में देख रहे हैं। दिल्ली जाग गई है और आप उसका एग्जिट पोल से बेहतर रिजल्ट आप देखेंगे 8 तारीख को। महादेव की कृपा है, ये प्रधानमंत्री मोदी जी का मैजिक है, उनका विश्वास है, उनके किए हुए कार्यों का असर है कि उनका नाम हम लोगों को खाली लेना है। और सारे पूर्वांचलियों को मैं उसके लिए दिल से धन्यवाद, समस्त दिल्ली को अभी से दिल से बधाई देता हूँ। लेकिन आम आदमी पार्टी का कहना है कि जो ये एग्जिट पोल किया जाता है, ये तो मसाज करने वाली कंपनी, स्पा करने वाली कंपनियां कर रही हैं, तो ऐसे ही नतीजे होते हैं। देखो, दर्द तो होता है, पीड़ा है, लोगों को थोड़ा दर्द समझ रहे हो। उनको लगा था कि वो लोग अजय हैं, रावण को भी लगा था कि हम अजय हैं, है ना? ऐसा तो नहीं होता ना। तो ये झटका है, दर्द है, बड़ा जोर का झटका लगा है और घमंड चकनाचूर होगा। एक उपचुनाव अयोध्या क्षेत्र के मिल्कीपुर में भी हुआ, ऐतिहासिक जीत होगी, ऐतिहासिक जीत हो। अरे युग सच्चाई का है, मोदी जी निस्वार्थ संतों का युग है। जनता का पैसा जो जनता में लगा है उसी का युग है। जनता जाग चुकी है, सनातनी जाग गए हैं। ऐसा समय कभी भारत में आया नहीं था और ये समय को देश की जनता अपने हाथों से। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने भी कहा है कि एग्जिट पोल के नतीजे बिल्कुल सही होंगे क्योंकि बीजेपी दिल्ली में आ रही है। उन्होंने ये भी कहा है और दिल्ली विधानसभा के एग्जिट पोल पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने ये भी कहा है कि पिछले 5 साल में सिर्फ बहाने सुनने को मिले। अरविंद केजरीवाल ने खुद कहा था कि अगर मैं यमुना साफ न कर पाऊं तो मुझे वोट मत देना। दिल्ली की जनता ने इस बार डबल इंजन वाली बीजेपी सरकार को चुना है। के सहारे ही नहीं, मैंने प्रचार किया है कई भाजपा की सीटों पर। एक सीट पर गठबंधन के तहत देवली की सीट पर हम लोग की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास भी चुनाव लड़ रही थी। उसके सहारे मैं अपने अनुभव से मैं इस बात को कह सकता हूं कि इस बार दिल्ली की जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच वाली डबल इंजन की सरकार को चुनने का फैसला किया। कारण है कि पिछले 5 साल में जिस तरीके से सिर्फ बहाने सुनने को मिले और जो वादे किए थे केजरीवाल जी ने, उन्होंने खुद ही कहा था कि अगर यमुना साफ नहीं कर पाऊं तो मैं मुझे वोट मत दीजिएगा। तो जनता ने इस बात को माना ना कि भाई आपने अपनी सहूलियत की तो चीजें कर ली। आपने कहा था कि गाड़ी नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा, सिक्योरिटी नहीं लूंगा। अपना भौकाल पानी में शायद ही आज आपसे आगे कोई और नेता होगा। अपनी चीजें आपने कर ली, पर जब जनता को सहूलियत देने की बात आई तो एलजी साथ नहीं देता, केंद्र सरकार साथ नहीं देती। तो माइट एज वेल फिर एक ऐसी सरकार को दिल्ली की जनता चुने जिसको पूरा समर्थन केंद्र सरकार का मिले, हर तरीके से वो आपके वादों पर वो खरा उतर सके। इसी सोच के साथ दिल्ली की जनता ने इस बार का मतदान डबल इंजन की सरकार को चुनने के लिए किया। 8 तारीख को परिणामों के बाद आप देखिएगा कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली एनडीए की सरकार दिल्ली में सरकार बनाने जा रही है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा है कि जिस तरह से अमेरिका ने ये व्यवहार किया, अमेरिका का व्यवहार अमानवीय है, जो हथकड़ी लगाकर अवैध भारतीय प्रवासियों को अमेरिका से भेजा गया।
कांग्रेस सांसद इसको लेकर शशि थरूर ने कहा है कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि अमेरिका से अवैध प्रवासियों को निर्वासित किया गया है, लेकिन उन्हें हथकड़ी लगाकर जिस तरह मिलिट्री प्लेन में वापस भारत भेजा गया वो अमानवीय है, वे अपराधी नहीं हैं। भारत को कहना चाहिए कि यह उचित नहीं है। वहीं समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने भी कहा कि उनको बंदी बनाकर लाने का काम हुआ है। विश्व गुरु बनने का रास्ता भी ऐसा होगा कि आपके भारत के लोगों को हथकड़ी लगाकर भारत भेज दिया जाएगा। Well, look, it's not the first time we've had people deported. It's just that the media has suddenly woken up to the story because Mr. Trump has done it perhaps a bit quicker than people expected. But already last year, under the Biden administration, we had over 1,100 Indians being deported back. If you're illegally in the US has a right to deport you. And if your identity as an Indian is confirmed, then India has an obligation to accept you. So in both cases, there really isn't very much debate. However, it wasn't good to hear that they were brought back forcibly in a military plane and handcuffed and so on. That was quite unnecessary. It should have been enough to either put them on a commercial aircraft or a civilian plane and send them back. You can, if you want to do a mass deportation, do civilian charters. That would have been the more humane thing to do. They may, strictly speaking, have broken your laws by coming into your country, but by and large, they have no bad intentions. They're not criminals. They're not convicted of anything else. They're there to make a better life for themselves, which they have done by violating your laws, so you can send them out, no problem. But handcuffing them and putting them in a military aircraft and sending them in this way, I think India should say that this is not entirely advisable. देखिए बंदी बना के लाना ये बंदी बना करके जो लाने का काम हुआ है। अब विश्व गुरु और विश्व गुरु बनने का रास्ता क्या है? ऐसा ही होगा विश्व गुरु बनने का रास्ता कि आपके भारतीय लोगों को हथकड़ी लगा करके भेजा जाएगा भारत। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने कहा है कि दिल्ली में एग्जिट पोल जो हुआ है वो कुछ नहीं चलेगा, वहां पर आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि पिछले चुनाव से एग्जिट पोल सही नहीं रहे हैं। ज़्यादातर एग्जिट पोल धोखा दिखा रहे हैं कि बीजेपी सरकार बनने जा रही है, लेकिन कुछ दिखा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी सरकार बनाने जा रही है। लोगों का एग्जिट पोल पर भरोसा खत्म हो गया है। हरियाणा में क्या हुआ, उन्होंने कहा कि हरियाणा में क्या हुआ, हमें पूरा भरोसा है कि दिल्ली में बीजेपी सरकार नहीं बनाएगी, आम आदमी पार्टी वहाँ सरकार बनाएगी। अभी पिछले कुछ चुनाव से एग्जिट पोल का आकलन सही नहीं हो रहा है और जो एग्जिट पोल दिखाया जा रहा है उसमें बहुत से ज़्यादातर लोग बीजेपी सरकार बन रही है ये दिखा रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों ने वहाँ आम आदमी पार्टी की सरकार बनती हुई दिखा रहे हैं। तो अब जब तक 8 फरवरी को अंतिम परिणाम नहीं आ जाते हैं, एग्जिट पोल पर अब भरोसा नहीं रहा लोगों को। हरियाणा में क्या हुआ, बहुत बार एग्जिट पोल ज़्यादातर इधर तो कुछ चुनाव से ये देखे जा रहे हैं कि एग्जिट पोल बिल्कुल गलत साबित हो रहे हैं। तो अब इस बार दिल्ली के चुनाव में जो एग्जिट पोल नतीजों को लेकर दिखाया जा रहा है उस पर लोगों को कैसे भरोसा होगा? हमें पूरा विश्वास है कि दिल्ली में बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी, वहां पर आम आदमी पार्टी। बीजेपी सांसद अरुण गोविल ने कहा है कि एग्जिट पोल सही है और इस बार बीजेपी की सरकार दिल्ली में बनने जा रही है। बीजेपी सांसद अरुण गोविल ने एग्जिट पोल पर भरोसा जताते हुए कहा कि कुल मिलाकर आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल ने इतने ज़्यादा झूठ बोल दिए कि दिल्ली की हालत इतनी ख़राब कर दी कि दिल्ली के लोगों को समझ आ गया कि अब बदलाव का समय आ गया है। आप तो ये एग्जिट पोल की बात कर रहे हैं। मैंने जिस दिन आखिरी कैंपेन हो रहा था 3 तारीख को, उस दिन मुझे लगा था कि इस बार सरकार जो है वो भाजपा की बनेगी दिल्ली में। सर किन मुद्दों को लेकर के आप लोग कहते हैं? नहीं, ओवरऑल जो है ना जो आप है केजरीवाल जी हैं उनके ऊपर से विश्वास वो इतना ज़्यादा उन्होंने मुझे लगता है झूठ बोल दिए हैं, सारी चीज़ें इतनी दिल्ली की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई है उनके कार्यकाल में कि लोगों को ये समझ में आ गया है कि नहीं, दिस इज़ द टाइम टू चेंज नाउ। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा है कि अमेरिका के इस व्यवहार से काफ़ी दुखी हूं और जिस तरह से अवैध प्रवासियों भारतीय प्रवासियों को भेजा गया वो बिल्कुल गलत था।
लोकसभा में प्रश्नकाल शुरू होते ही विपक्षी सांसदों ने अमेरिका में कथित रूप से अवैध रूप से रह रहे भारतीय नागरिकों के निर्वासन का मुद्दा उठाया। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा कि मैं अमेरिका सरकार के इस रवैये से बेहद दुखी हूं। भारत और अमेरिका के बीच संबंध अच्छे हैं, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से 100 से ज़्यादा भारतीयों को मिलिट्री प्लेन से भेजा है वो पूरी तरह से अमानवीय है। विदेश मंत्रालय और प्रधानमंत्री को इस पर अपनी बात रखनी चाहिए। मंत्री जी, प्रश्न संख्या 41। माननीय मंत्री जी, सर, द आंसर हैज बीन प्लेस्ड ऑन द टेबल ऑफ द हाउस। ठीक है अध्यक्ष जी, आपके संरक्षण की आवश्यकता। एक मिनट प्लीज। माननीय सदस्यगणों, आपकी चिंता सरकार के ध्यान में है और ये विदेश नीति का मामला होता है, दूसरे देश का विषय है, भारत सरकार के संज्ञान में। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि प्रश्नकाल महत्वपूर्ण समय होता है और प्रश्नकाल के महत्वपूर्ण समय में मतदाताओं की चिंताएं, उनकी समस्याएं, उनकी कठिनाइयों को हम उठाने का प्रयास करते हैं और सरकार जवाब देती है। बहुत कठिनाई से क्वेश्चन लगते हैं, आप उनको बोलने दें कीर्ति आजाद जी को। देखिए, मैं तो अमेरिका सरकार की इस रवैये से बहुत ही दुखी हूं। अमेरिका और भारत के बीच में संबंध अच्छे हैं, लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने 100 से ज्यादा भारतीय नागरिकों को एक मिलिट्री प्लेन पर उन पे पैरों और हाथों पर हैंडकफ चेन लगाकर जिस तरीके से भेजा है, पूरी तरीके से अमानवीय है। और मैं तो आश्चर्यचकित हूं कि आज हमारे देश के प्रधानमंत्री भारतीय नागरिकों के साथ इतना अपमानजनक व्यवहार हुआ है, वो चुप क्यों है? एमईए क्यों चुप है? जहां तक हमने देखा है कि कोलंबिया जैसा एक छोटा सा देश, उन्होंने पूरा जोर लगाया अमेरिका की सरकार पर जब उनके नागरिकों को वापस भेजा गया, लेकिन हमारी सरकार चुप। तो मुझे बहुत ये आश्चर्यचकित है। मुझे लगता है कि एमईए प्रधानमंत्री को इस पर अपनी बात रखनी चाहिए। हमें याद है कि जब भी अमेरिका की सरकार इतिहास में एक भारतीय डिप्लोमेट के साथ, जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, तो एक भारतीय डिप्लोमेट के साथ जब अमेरिका में खराब व्यवहार किया तो उसका हमने बहुत ही सख्त जवाब दिया। लेकिन आज 100 से ज्यादा भारतीय नागरिकों को, जहां पे लगभग महिलाओं भी हैं, बच्चों भी हैं, उनके साथ ऐसा व्यवहार हुआ है और प्रधानमंत्री चुप्पी साधे हुए हैं। इसीलिए मैं चाहूंगा कि वो स्पष्टता से अपनी बात रखें। एमईए ने जो एक्सटर्नल अफेयर्स की उसमें बोला है कि वो बहुत कर रहे हैं। शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने कहा है कि जिस तरह से एग्जिट पोल आया है, 5 फरवरी को चुनाव मतदान हुए हैं, ये जो एग्जिट पोल 8 फरवरी को असली पोल नजर आएगा, इसमें आप सरकार बनाएगी। जिस पोल में कहा है, एक्चुअल पोल हुआ है, उसका निर्णय तो 8 तारीख को होगा। जिस पोल ने महाराष्ट्र में ये भी कहा था कि हम लोग जीत रहे हैं, महाविकास आघाड़ी जीत रही है। जिस पोल ने ये भी कहा था हरियाणा में कांग्रेस जीत रही है। अब देखेंगे 8 तारीख को लोगों ने वोट किया है। हमें विश्वास है कि बीजेपी दिल्ली नहीं जीतेगी और आप फिर एक बार सत्ता पर आएगी, हमारा विश्वास है। जमीन पर जो हमने पिक्चर देखा है वो अलग था। अब एग्जिट स्कूल में सबके ऊपर दबाव है सरकार का। खुलेआम यहां पर पैसे बांट रहे थे लोग, सड़क पर बीजेपी के लोग, हाँ, टेबल लगाकर पैसे बांट रहे थे। मैंने खुद देखा मेरे आंखों से। लेकिन न प्रशासन उसके ऊपर कोई एक्शन ले रहा था, न पुलिस ले रही थी। तो आत्मविश्वास, विश्वास बीजेपी को हो सकता है कि हमने ये सब कुछ कांड किया है तो हम जीत जाएंगे, लेकिन जनता ताकतवर है। 8 तारीख को हम देखेंगे क्या। नई दिल्ली विधानसभा सीट से उम्मीदवार संदीप दीक्षित ने कहा है कि एग्जिट पोल जिस तरह से आए हैं, वो कभी एग्जिट पोल कभी सही होता है और कभी सही नहीं होता है।
लगता है शायद सामान्य जितना वोट पड़ता था पहले असेंबली में उससे ज्यादा पड़ा। जैसे हमारी नई दिल्ली में 52-55% पड़ता था, तो 60 के करीब आया है, 57-58 के करीब आया। ठीक है, अब क्या कारण है क्या नहीं है कि लोग ज्यादा नहीं निकले, मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन जो पोल पड़ा है पड़ा है। लेकिन इससे पीछे के चुनाव को देखा जाए तो इससे ज्यादा वोट जो है टर्न आउट हुआ था, कम हुआ। ये भी हो सकता है कि बहुत ज्यादा लोगों को एक रुचि नहीं बनी होगी, रोमांच नहीं बना होगा। जो ट्रेडिशनल या जो काडर वोट है पार्टियों का वो ज्यादा निकला। बहुत सा आदमी जो देख रहा था कि हम क्या एक नई सरकार चुनना चाहिए, नई तरफ जाना चाहिए, शायद वो नहीं निकला। अब मैं तो आंकलन नहीं लगा सकता हूँ, कह नहीं सकता। लेकिन जो एग्जिट पोल है दिल्ली चुनाव में जीत का अनुमान है। देखो एग्जिट पोल मुझे तो कल रात को ही सुनाई पड़े थे, मैं जब लौट कर आया था। अगर आप एग्जिट पोल्स ही माने तो ठीक है, उनकी सरकार बन रही है, लेकिन मेरा ये फीलिंग है कि एग्जिट पोल जो है शायद आम आदमी पार्टी को उतना नहीं आंक रहे, ज्यादा कमजोर आंक रहे हैं। मुझे नहीं लगता इतना खराब उनकी स्थिति रहेगी अगर जिस तरीके का ट्रेंड ये बताया जा रहा है। और ऑल्सो जो मुझे निराशा हुई है एग्जिट पोल से कम देख के, कि मुझे लगता है कि कांग्रेस को 17-18% वोट आराम से मिल रहा था। लोगों में जो रुझान था, क्या हम वो वोट नहीं ले पाए या उसको लेने में कमजोरी रह गई, ये हमें देखना चाहिए। लेकिन आम आदमी पार्टी एग्जिट पोल हमेशा आम आदमी पार्टी के प्रदर्शन को कम करके दिखाता है, जबकि पार्टी ने बेहतर प्रदर्शन किया है, जो आप कह रहे हैं। नहीं वो ठीक है, वो देखिए एग्जिट पोल कभी सही होते हैं कभी गलत होते हैं। हरियाणा में भी हमने देखा, कई जगहों पे सही भी हो जाते हैं, कई जगहों पे गलत भी हो जाते हैं। तो एग्जिट पोल का ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अगर आप केवल एग्जिट पोल लें तो मैं उस पर अपनी प्रतिक्रिया कर रहा हूं कि भाई मुझे नहीं लगता है कि वो उतनी एक्यूरेट तस्वीर दिखा रहे हैं जो मुझे लगता है कि दिल्ली के चुनाव में। नहीं, मेरा अपना आकलन है, बाकी ठीक है, अब तो पोलिंग हो गई है तो अब इंतजार करते हैं 8 तारीख का। और अच्छा हम लोगों ने चुनाव लड़ा है। जिस कांग्रेस को दिल्ली में कुछ नहीं समझा जाता था उसने सारी समीकरण बदले हैं, और अगर आप सारे समीकरण बदलने के स्तर पर आते हैं तो फिर आदमी कहीं भी जा सकता है। देखिए, सपा ने जिस तरह से सदन में चुनाव आयोग पर आरोप लगाया और चुनाव आयोग को कहा कि वो मरे हुए हैं और उसको लेकर सदन में कफन भी लाए, इसको लेकर बीजेपी के नेता संदीप पात्रा ने इसको लेकर काफ़ी नाराज़गी जताई है। उन्होंने बीजेपी सांसद हैं संबित पात्रा, उन्होंने कहा है कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव के बयान पर उन्होंने कहा कि सदन की कार्यवाही शुरू होने पर समाजवादी पार्टी ने मर्यादा के विपरीत जाकर अध्यक्ष के सामने चुनाव आयोग के मृत शरीर के लिए कफन पेश किया। आज तक उन्होंने कहा कि आज तक भारत की संसदीय कार्यप्रणाली में ऐसा कुकृत्य कभी नहीं हुआ है। चुनाव आयोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण संवैधानिक संस्था है, ऐसा करने से ज़्यादा जघन्य कुछ नहीं हो सकता, यह लोकतंत्र की हत्या के बराबर है। हम मांग करते हैं कि अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी सदन में इसके लिए माफ़ी मांगे। कफन देना पड़ेगा, अर्थात सफेद कपड़ा देना पड़ेगा। जब सदन आरंभ हुआ तो समाजवादी पार्टी ने आज पहली बार मर्यादा तोड़ते हुए चुनाव आयोग के लिए, चुनाव आयोग के मृत शरीर के लिए कफन प्रस्तुत किया स्पीकर महोदय के सामने। आज तक हिंदुस्तान के पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स में, संसदीय गतिविधि में इस प्रकार का कुकृत्य कभी नहीं हुआ था। चुनाव आयोग एक बहुत महत्वपूर्ण संवैधानिक संस्था है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ये कहना कि चुनाव आयोग के कमिश्नर इत्यादि मर गए हैं और चुनाव आयोग मर गया है और उसके लिए कफन प्रस्तुत करना, सफेद कपड़ा पार्लियामेंट में देना, इससे जघन्य कांड कुछ नहीं हो सकता है। दिस इज ऑलमोस्ट लाइक अ टॉर्चर ऑन डेमोक्रेसी। ये डेमोक्रेसी की हत्या के बराबर है। आज भारतीय जनता पार्टी ये डिमांड करती है कि बाकी भी ऑपोजिशन के पार्टी अपने मत को स्पष्ट करे और अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी इस कुकृत्य पर क्षमा याचना करे पार्लियामेंट में। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार।